Very good morning children. Today I am going to continue next video from chapter 15 and it is your last video from this chapter. Let us see how is oxygen in air or atmosphere replaced. We have just studied that a large number of animals and plants are consuming oxygen from the air for the process of respiration. The oxygen of air is also consumed during the burning of fuels by human beings. Even then, all the oxygen of air does not get used up. We will now explain how the oxygen in the air is replaced or refilled. यानी कि बच्चों आपको सभी को पता है कि all the living beings need oxygen. यानी कि एयर से बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है. तो किस प्रकार फिर ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा से रिफ़िल कैसे किया जाता है. द ऑक्सीजन ऑफ एयर बीइंग कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड इन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिप्लेस किया जाता है क्योंकि जब पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं इन दैट केस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड release oxygen. This happens as follows. In sunlight, plant use carbon dioxide and water to make the food by the process of photosynthesis. As you know, in the previous classes you have learned about it, the process of photosynthesis. Plants also consume some of the oxygen. Plants also consume some of the oxygen for respiration, but they produce much more oxygen than they consume. यानी कि पौधे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं लेकिन उससे अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं गैस ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर और द एटमॉस्फेयर. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इज यूज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टू लिव. यानी पौधों के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमन बींग्स लेते हैं और ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं. The mean that the animals depend on plants for getting oxygen gas for breathing. Thus, the animal, including human beings, cannot live without plants. We have just discussed that the plant keep on using carbon dioxide gas from the air for making the food by the process of photosynthesis. Even then, all the carbon dioxide of air does not get used up. We will now explain how the carbon dioxide in the air is put back. यानी कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको दोबारा से हम एयर के अंदर डालते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पुट बैक into the air by the respiration of animals and plants. बच्चों अगर एक वर्ड में कहा जाए तो यानी कि जब हम सांस लेते हैं we take oxygen and release carbon dioxide. तो this carbon dioxide is used by plants. They use carbon dioxide and release oxygen. इस प्रकार से जो बैलेंस है यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इस प्रकार से वो रिप्लेस होती रहती है. As by the burning of fuels by human beings, they happen as follows. The animals, plants use oxygen from the air for respiration and give out carbon dioxide. The carbon dioxide goes back into the air, and similarly the burning of fuels or kerosene, petrol, diesel by human beings is used oxygen from the air produced carbon dioxide gas. This carbon dioxide gas goes into the air by the process of respiration and burning of फ्यूल्स. यानी कि जब हम सांस लेते हैं और ब्रीथ करते हैं और या कोई चीज़ें जलाते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में चली जाती है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देन यूज बाय द एयर में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है. सो दिस मीन्स दैट द प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि प्लांट्स डिपेंड ऑन animals and human beings and animals and human beings depend on plants for breathing or for food also. From the above discussion we conclude that the respiration by animals and plants and burning of fuels by human being uses oxygen from the air and puts carbon dioxide into the air. On the other hand,
photosynthesis by plants use carbon dioxide and but put back oxygen into the air. यानी कि इस प्रकार जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो बना रहता है. एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड gases in the air. This shows that the interdependence of plants and animals in nature. The next topic we are going to discuss, that is uses of air. What are the uses of air? Air is useful to human beings in many ways, and some of the important uses are given here. You can see air is used by human beings for breathing or for respiration. यानी कि ब्रीथिंग के लिए एयर का इस्तेमाल होता है. एयर इज ऑल्सो यूज फॉर बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा. कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू फिल टायर. यानी कि हवा पंप के द्वारा हम हवा को ही टायर में भरते हैं, व्हीकल्स में डालते हैं, बाइसिकल्स में डालते हैं, स्कूटर, कार, इवन बस, ट्रक ऑल्सो. एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑल्सो. यानी कि एयर के द्वारा सीड का डिस्पर्सल भी होता है. यानी कि सीड जो है इट कैन स्कैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हवा के द्वारा. आपने पढ़ा है पिछले लेसन्स में. ब्लोइंग एयर इज़ यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स. यानी कि सीड के साथ साथ वो पोलन ग्रेन्स का भी डिस्पर्सल होता है. यानी कि पोलन ग्रेन्स हवा के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं और इन इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड. यानी कि नए प्लांट्स को ग्रो करने में भी इसका हाथ होता है. देन लास्टली ब्लोइंग एयर इज़ यूज टू टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल. यानी कि विंड मिल जो होते हैं उनको भी चलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. द विंड मिल्स आर देन यूज टू ड्रॉ वाटर बाय द रनिंग पम्प्स टू रन फ्लोर मिल्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अभी विंड मिल के द्वारा मिल्स चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है. Let us see how the windmill works to draw water from the ground. The blowing air rotates the windmill blade and continuously when the blade rotates, the crank attached to the blade also rotates. And when the crank rotates, then its U-bend lifts the pump rod up, down continuously, and this rod works like the pump which lifts the water from the ground. जो कि पानी को अब ये रोटेट होता है तो ये क्रैक क्या होता है, अप डाउन करता है. और इस तरीके से जिस प्रकार हम हैंड पंप चला के पानी बाहर निकालते हैं वैसे ही सेम ही कंडीशन में पानी जो है ग्राउंड से बाहर आता है. देन नेक्स्ट, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ याच. यानी कि सेलिंग, बोट सेलिंग के लिए भी हवा का इस्तेमाल होता है, ग्लाइडर्स, एरोप्लेन्स. एयर ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड, बैट्स एंड इंसेक्ट्स टू fly. In fact, birds and bats, insects can fly only due to the presence of air, because the birds, bats and insects fly by the pushing the air downwards and backwards. यानी कि हवा को downwards और backwards push करने के कारण ही birds और insects जो होते हैं हवा में उड़ पाते हैं. The next, air plays an important role in the water cycle nature also. This is because hot air being lighter rises up and carries the water vapor high up in the sky and it helps to bring the rain. तो इस प्रकार बच्चों एयर जो है हमारे लिए बहुत सारे कामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग फॉर अस एवरी ह्यूमन बींग्स और एवरी लिविंग बींग्स. सो चिल्ड्रन, योर चैप्टर इज़ एंड. ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है. इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल टीच यू न्यू चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू न्यू चैप्टर दैट इज़ गार्बेज, about waste materials, that is from our house or industrial waste or the waste that is produced in factories. Okay children, thank you for watching.